السلام علیکم جی. تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بہت ہی گریٹفل اینڈ شاندار ویڈیو کے ساتھ. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو جڑے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں. کتاب الملائم میں پڑھیے، بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظما، بھائی صاحب جس کو کہ میں بھی آپ نے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ. لاسٹ کروسیڈ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ بھائی مصلحت سے صاحب ورندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا. یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، سعودی عرب بھی، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں. اسرائیل اتنا بڑا ہو جائے گا، افریقہ تک آ جائے گا، اوپر بھی آ جائے کہا گیا گا. الملحمۃ العظما. عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، سیریسلی اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 12,000. 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ بھائی صاحب جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، ہاں اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. جانتے خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا. یہ اندر تو انگارا ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال وہی ہمیں تو کبھی یاد نہیں، ہم تو بھول گئے. ہاں وہ تو 500 برس پرانی بات ہے، جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین میں یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمان ہے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں نہ کیا بات کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہوں. ہاں حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. او مائی گاڈ. حدیث صحیح. یار یہ کتنی شاکنگ پریڈکشن کی ہے انہوں نے. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو کے لیے بربادی. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر اپنے قائم کر کے نکالا. دبئی تو بہت ماڈرن ہو گیا. وہی اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستان میں. پاکستانی لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات فرض کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اس ملحمۃ العظما کہا حضور نے، اسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے؟ کیا A very big war
which will be fought हाँ. between the forces of evil and good Oh. before the end of this world. Before the end of this. इस दुनिया के खात्मे से खात्मे से पहले पहले वही. खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी. हाँ. अर्मगेदोन उसे कहते हैं अरबी में, और अर्मगेडोन उसे कहते हैं अंग्रेजी में. और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है, ओह. जो इसमें कि मुकाशिफात यूहन्ना, रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन. ये तो मैं कह रहा हूँ यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं आया चाहता है. इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव हैं, नेओ कंजर्वेटिव, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफक अलैह, जिसके तहत ये जंग सलीबी शुरू की गई. तो सुन लीजिए आप. क्या? आर्मगेडोन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, वही. नंबर 2. मस्जिद अक्सा और कुबतुस सगरा को गिराना नंबर 3, ओह, जेरूसलम पे हमला. वहां थर्ड टेम्पल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कबल मसीह में, फिर बर्बाद की थी नेबूकदनेस्सर ने, हाँ. दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी और तक गिरी पड़ी. उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक. एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, बातों करते हैं. हाँ हाँ हाँ. ओह. वहां वो बनेगा थर्ड टेम्पल. थर्ड टेम्पल. 4, उस पे लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद. ये तख्त कहाँ है इस वक्त? कहाँ? ये लंदन शरीफ के अंदर, ओह. जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ. अच्छा. एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद के साथ कोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा. हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसके साथ कोशी होती. सन 70 में टाइटस ने गिराया उसे, हैकल को, वो पत्थर ले गया. ओह. वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक. वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट पे उसे बना दिया गया. अच्छा. अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो जिसकी भी ताजपेशी होती है, कुछ लोग, क्या बात. ये लाकर रखा जाएगा थर्ड टेम्पल. ओह. और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा, जो मसीह दज्जाल होगा. ओ मसीहा दज्जालों का मतलब शैतान. ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल है हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम. हमारा ये तो बात की बात है ना. इस वक्त जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अरबों पर बहुत बड़ा अज़ाब, और पाकिस्तान का मामला बनता ही है, मैं यकीन से नहीं कह सकता. हैंगिंग इन द बैलेंस, हो सकता है अल्लाह ताला पर रहम फरमाए, हो सकता है, अगर जो उसी पे शराइत हो. जमन के मालिक अगर बना ले मुआफिक अपना शार अब भी, जमन में आ सकती है पलट कर जमन से उठी बहार अब हो सकती है. और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मौजूदाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बकायदे की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, लाजा सजा दी जाए और हमसे ये मुल्क छीन लिया. हो सकता है. दूर कर सकते हैं, कानूनी बात कर सकते हैं. जो घेराव हो रहा है आपके मगरिब में नेटो फोर्सेस और मशरिक में भारत फोर्सेस, भारतीय फोर्सेस गिद्धों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं. पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए, यहाँ और बदअमनी हो जाए. लाहौर में फिर आज धमाके हो गए. 2 दिन पहले का धमाका मैं सह के आया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ. वो जाने बची ने जो हमारी अकेडमी का हश्र हुआ, मैं आपको ये बता सकता हूँ. ये सारा क्यों हो रहा है? ताकि यहाँ बदअमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए. मगरिब से नेटो फोर्स दाखिल हो जाए, मस्जिद से भारतीय फोर्स आ जाए और हमारे एटमी दाम तोड़कर और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए. नाउ डू एज यू लाइक. ये उनका नक्शा है. होगा क्या? वो अल्लाह जानता है. होगा वो जो अल्लाह चाहे. लेकिन अल्लाह का चाहना जो है वो किस पर मुनहसर है. यहाँ इनकलाब बर्पा करो, यहाँ इस्लाम लाओ. अगर धंधों में लगे रहोगे तो वो खुद ब खुद नहीं आ जाएगा. सहाबा ने जाने दी थी,
कितनी तकलीफें उठाई। सीरियसली भाई, सीरियसली 12 बरस तक मक्की दौर के अंदर नशे दरवेशी दर साजो दमादम तक जो पुख्ता शबी खुदरा पर सल्तनत जंग तक। यौम ताइफ याद है जो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा था हुजूर से कि यौम उहद से ज्यादा सख्ती भी आप पर कभी आई? यौम उहद पर क्या हुआ? क्या? तलवार का वार पड़ा था आपके चेहरे मुबारक, ये जो रुखसार की हड्डी है इसके अंदर वार गया है, ऊपर फौज की 2 कड़ियां थी वो इसमें घुस गई, 2 दंदाने मुबारक शहीद। वो फौज की कड़ियां एक साहबी ने अपने दांतों से पकड़ के खींचने की कोशिश की, Seriously? क्या जतन करके निकाली गई होगी तो खून का फव्वारा आया, इतना खून गया है कि आप बेहोश हो गए, गिर गए। हो बेचारे। मशहूर हो गया कि आपका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। ये सीरत कभी पढ़ी है? हजरत आयशा के होश का तो यही दौर था ना, यौम ताइफ में जो हम क्या थी बच्ची थी। यार उस टाइम लोग भी अलग ही थे यार, सीरियसली। 3 दिन तक मक्के की गलियां और वहां के वो बादशाह लोग पथराव कर गए थे इस उम्मीद में कि शायद वहां का कोई सरदार ईमान ले आए, तो यहाँ तो अबू तालिब भी फौत हो गए। यही दुनियावी सहारा था, खानदानी सहारा था अबू तालिब के जरिए। और घर में एक दिलजोई करने वाली रफीका हयात थी, वो भी कभी इंतकाल हो। ओके। आपने कहा ये आमुल हुज़्न है, अब तो सबको तय हो गया कुरैश को कि आप जैसे कत्ल कर दो, इसीलिए आप गए ताइफ, शायद वहां का कोई बड़ा सरदार माने ईमान ले आए तो मैं अपना मरकज इधर शिफ्ट कर दूं। तीनों से मिले हैं, तीनों ने वो जवाब दिए, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारे साथ बात भी करने को तैयार हूं। अच्छा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था अल्लाह को नबी बनाकर भेजने के लिए? देखो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मैं बेइज्जती कर बैठूं, वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं मारा जाऊंगा, जाओ जाओ जाओ। ये सुलूक मोहब्बत के साथ। और फिर छोकरों उसकी अर्जिन जिन्हें आपने इशारा किया था, खबर लो पथराव हो रहा है, साथ में एक आदमी ज़ैद इब्न हारिसा। अब सामने से पत्थर आ रहे हैं तो हजरत ज़ैद आगे आ जाते हैं, ढाल बनते हैं, मुझे लगे पत्थर उजू कर रहे हैं, अब पीछे से आ रहे हैं, चारों तरफ से तो ढाल नहीं बन सकता। सही बात है भाई यार, जिस्म नहूलुहा, खून जाकर जूतियों में जम गया है, जो सुंदर नहीं थी। फिर वहां से बाप से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। अल्लाह तेरी जनाब में फरियाद लेकर आया हूँ अपने कुव्वत की कमी। तो अंत में मेरे भाइयों और बहनों, मुझे तो आज की वीडियो बहुत ग्रेटफुल लगी। अगर आपको लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके साथ साथ अगर डॉक्टर इसरार अहमद की ये प्रेडिक्शन सही निकली तो इससे बहुत अफरा तफरी तो ज़रूर होगी। तो आओ मिलकर हम अपने अमन और सलामती की दुआ करते हैं, और इसके साथ साथ दुआओं में भी मुझे आप याद रखना। तो मिलते हैं कल एक प्यारी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।